بھٹو شہید کی برسی کی تقریب جو ہے وہ راولپنڈی میں منائے، اور اس کے لیے ہم سارے کارکنوں سے رابطے کر رہے تھے، مختلف ڈویژنز کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر، ہم پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، کے پی میں، ہر جگہ پہ، اور اس کی بھرپور تیاریاں تھیں۔ اس سے پہلے تو ہم مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب مارچ ملتوی ہوا تو اس کی تیاری شروع ہو گئی، اور ہم نے ابھی تک ابتدائی میٹنگ پنڈی ڈویژن کی ہے، گجرانوالہ ڈویژن کی ہے، پرسوں ہم گجرانوالہ تھے، کل ہم ساہیوال ڈویژن میں تھے، آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور آج راستے میں چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تو وہ کنسلٹیشن کر رہے تھے، ان کو ایڈوائز دی گئی ہے کہ اس وقت پنجاب میں کرونا کی صورتحال، خاص طور پہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، اس پورے ایریا میں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہاں اس کی شدت بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے۔ تو تھوڑی دیر تک شاید پارٹی فیصلہ کر کے چیئرمین صاحب کو اناؤنس کریں گے، ہمیں اس راستے کے دوران سفر میں مکمل پتہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ تقریب یہاں اجتماعی تقریب نہ بھی ہوئی تو اس کی دوسری صورت جو ہے کہ ہر ضلع کے اندر پارٹی کارکنان بھٹو شہید اور پیپلز پارٹی کے شہداء کے لیے قرآن خوانیاں کریں گے، لیکن اس کا اعلان چیئرمین صاحب خود فرمائیں گے، ابھی میں حتمی طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے بنیادی طور پہ کیونکہ کرونا کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور آپ سارے اب آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سندھ میں حالات خراب تھے، تو چیئرمین صاحب نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر بھٹو شہید کی برسی ملتوی کر دی تھی، برسی کی تقریب، اور ابھی جو فیصلہ وہ لینے جا رہے ہیں یا لیں گے وہ بنیادی طور پہ اس عوامی ایشو کو سامنے رکھ کے ہی لیں گے کہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، اور ہماری کوشش اور خواہش تھی کہ ہم 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اجتماع سارے دوستوں کو ساتھ لے کے وہاں پہ کریں، اور ہم اس حکمران کو یہ پیغام دیں کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت آئی ہے تو ایک سیل رواں ہے، اگر 10 جماعتیں آئیں تو پھر تم کہاں ہوگے، لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے کچھ تعطل نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس حکومت کے خلاف متحد ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں جو زہر بھرا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، عدم تحفظ ہے، اداروں کے اوپر مسٹرسٹ ہے، اور ان حکمرانوں کا مسلسل حقائق سے فرار ہے، یو ٹرن کی پالیسیاں ہیں، اور ابھی آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ مزید آرڈیننس جاری کر کے جن منی بجٹس کا ہمیں خدشہ تھا وہ منی بجٹ آ گئے، یہ بجلی کے بلوں پہ بھی کوئی اندازاً 10% ریگولیٹری ڈیوٹی یا اس طرح کا کوئی ٹیکس لگانے لگے ہیں۔ یہ 150 ارب کے قریب جو سبسڈیاں مختلف اشیاء خورد و نوش پہ یا پاکستان کے عوام کو سہولت کی صورت میں دی گئی تھی، ان سبسڈیز کو وڈرا کرنے کے پروگرام میں ہیں، اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا، آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، اور ہم اس معاملے کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اس اپریہنشن کے تحت اس کو مسترد کیا تھا۔ یقین کیجئے میں کل پاک پتن میں تھا، 2 بڑے عجیب واقعے ہوئے۔ ہم بازار میں سے گزر رہے تھے دربار بابا صاحب کے پاس سے، تو وہاں
सारा बाजार हमारे इस्तकबाल में था। तो एक मोटरसाइकिल पे एक मियाँ बीवी जा रहे थे, उस हमारी बहन ने हमें सलाम किया, हाथ हिलाया, मैंने भी उनको हाथ हिलाया, वेलकम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी महंगाई का कुछ करो, महंगाई को जान छुड़ाओ। और दूसरा मेरे साथ वाकया उसी शहर में उसी जुलूस में हुआ कि छोटे छोटे बच्चे 8-8, 7-7 साल, 10-10 साल के हाथों में पीपल्स पार्टी के झंडे लिए बाजार में हम आस्ता आस्ता चल रहे थे, वो साथ साथ भाग रहे थे और वो नारे लगा रहे थे। और उनमें एक बच्चा बड़े जोश से नारे लगा रहा था, जो उसके घरों में होने वाली गुफ्तगू या उन शहरों और उन आबादियों में होने वाली गुफ्तगू की आवाज थी। और वो नारा था कि महंगाई को फांसी दो। यकीन करें, तो जिस तरह हम जियो भुट्टो के नारे लगाते हैं रिदम में, वो इसी रिदम में बच्चा नारे लगवा रहा था कि महंगाई को फांसी दो, महंगाई को फांसी दो। जो बात नन्हे मासूम बच्चों की जबान पे है, जो खवातीनों हजरात की जबान पे है, जो शहरों गांव में यकसां, हर क्लास में यकसां, हर जगह हर घर का ये मसला है। और अब तो बच्चे भी बिलबिला पड़े। अब इस हुकूमत का जाना बहुत जरूरी है। कल नैब ने मरियम बीबी को आज के लिए तलब किया था। हमने उनके दफ्तर मुस्लिम लीग के इकट्ठे होके ये ऐलान किया था कि नैब अगर उनको पेशी पे बुलाता है तो हम सारी जमातें उनके साथ, नैब इस गुंडे बनाए, रिपोर्टें उन कमिश्नरों की आई, कुछ नहीं हुआ, वहां नैब नहीं हिलता। इनको बीआरटी नजर नहीं आता, उसके ऊपर नैब नोटिस नहीं लेता। इनको मालम जब्बा केस नजर नहीं आता, वहां नोटिस नहीं लेता। सिर्फ अपोजिशन की जमातों को, उनकी क़यादत को यूं मतून करके और हुकूमत के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कल भी मैंने कहा कि हम एहतसाब के निज़ाम के हक में हैं, लेकिन हमारा पहले दिन से ये नारा है और हमने अपनी हुकूमत में जब हमने 18वीं तरमीम की थी उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारे बाकी दोस्तों ने हमारा साथ नहीं दिया। बाद में भी गुजारिशात की कि इस नैब के कानून को ठीक करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है ना कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब लोगों के बाजू मरोड़ के वफादारियां तब्दील करता है, नैब हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के काम आता है। लिहाजा इसको ठीक करना चाहिए। हमारी ख्वाहिश और कोशिश और आज भी है कि एक ऐसा नैब का इदारा, एहतसाबी इदारा ऐसा बनाया जाए जो पाकिस्तान के तमाम लोगों का, तमाम इदारों का एक कानून के तहत एहतसाब करे, बेलाग एहतसाब करे, बेरहम एहतसाब करे। और उसकी ज़ात में जो भी आता है वो खाली इमरान खान की तरह नारे ना हो, वो 200 अरब डॉलर बाहर से ले आऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लटका दूंगा। आज 3.25 साल होने को हैं, सब जमातों के कायदीन को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया, आज तक उन पे एक पैसे का केस ये साबित नहीं कर सके। ये जो कहते थे हमारे पास सबूत मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, आलमी अदालतों में भी पेश करेंगे, अपने मुल्क की अदालतें भी रोज इनके केस इनके मुंह पे उठा के मार रही हैं कि हमें सबूत दो, हमें गवाह दो, रेफरेंस मुकम्मल करो। इनके पास कुछ नहीं है। लिहाजा अगर आप अपोजिशन की इस तहरीक को रोकने के लिए नैब की यही नैब गर्दी जारी रहेगी तो सारी जमातें उसको रजिस्ट करेंगी। तो हमने सारों ने इकट्ठे होकर जब ये फैसला किया तो उन्होंने नैब का नोटिस विड्रा कर लिया। और आज हम सब अभी सुबह मरियम नवाज साहिबा के पास नाश्ते पे सारी जमातें इकट्ठी थी, हम वहीं से आ रहे हैं। जमातों के अंदर, इत्तेहादों के अंदर डिफरेंसेस होते रहते हैं। ये छोटे छोटे ऑपरेटिव प्रोसीजर के डिफरेंसेस हैं, छोटे इश्यूज के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए,
सियासी अमल में इदारा जाती मदाखलत बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को आज़ादाना रायदही के तहत इस मुल्क में अपने हुक्मरान बनाने चाहिए। तमाम इदारे आइन के तहत काम करें अपने अपने हदूद में रहते हुए। इन बातों पे तमाम जमातों का इत्तेफाक है और जो हमारे एक्शन पॉइंट्स थे हम उनके भी साथ खड़े हैं, उनमें से भी एक चीज से पीछे नहीं हट रहे। ये हमारी चंद गुजारिशात थी। आज भी हम उन रसूलों पे साथ खड़े हैं और हमने माजी में भी अपनी जो रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल रुकावटें थी उनको अबूर किया है। बड़ी बड़ी रुकावटें अबूर हुई हैं। एक घर के अंदर भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, उनका घर नहीं टूट जाता। जमात के अंदर बहुत सारे इश्यूज पे इख्तलाफ राय होता है, जमात नहीं टूट जाती। हम तो मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, हमारे दरमियान कई मौके पे इख्तलाफ राय और इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन क़यादत का यही विजन और यही कमाल होता है कि वो मुश्किल तरीन हालात में डेडलॉक्स को दूर करती हैं। ये भी इंशाल्लाह दूर होगा और हम इस हुकूमत को पाकिस्तान से चलता करके लोगों को, जिस तरह माजी में 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, हमने महंगाई पे भी कंट्रोल किया था, हमने तिजारत में भी इजाफा किया था, हमने रोजगार भी दिए थे, हमने पेंशनें भी बढ़ाई थी, हमने पाकिस्तान के हर तबके को रिलीफ दिया था और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की आमदन में टैक्स आमदन में दुगना उसको डबल किया था। कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन हमारा कुलिया ये है, ये हुक्मरान टैक्स की शरहें बढ़ा के नए नए टैक्स लगा के सब्सिडीज विड्रा करके ये समझते हैं कि इस जरिए से लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। हमारा विजन ये है कि जब जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं, पेंशनें बढ़ाते हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ाते हैं, रोजगार बढ़ाते हैं, कारोबार बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की तिजारत में इजाफा करते हैं, जमींदार को सपोर्ट करते हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। जो जो इकोनॉमी चलेगी, अगर दुकानदार का पैसा बेहतर होगा, उसकी आमदन बढ़ेगी तो वो ज्यादा टैक्स देगा। अगर सरकारी मुलाजिम के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेगा, वो दुकानदार को मिलेगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर फैक्ट्री वाले के पास जाएगा, तो वहां से वो कई हाथों में तकसीम होगा और जितनी दफा रोटेट होगा, जितने हाथों में वो पैसा जाएगा, उतनी दफा उसका टैक्स आएगा। तो हमने टैक्स की आमदन को बढ़ाने का वो तरीका जो अवाम की सहूलत भी है, कारोबारी तबके का फायदा भी है, किसान मजदूर की जिंदगी में आसानी भी है और सरकार की आमदन में इजाफा भी है, हमारा वो रास्ता है। वो ही हुकूमतें जो अवाम के साथ जुड़ी होती हैं, जो प्रोपेगेंडा पे नहीं, सिर्फ नारेबाजी पे नहीं, 3 साल बाद खड़े होके ये नहीं कहती कि हमें तो पता नहीं चला, हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, तजर्बे की मार खा गए हैं, बल्कि वो जमातें जिनका माजी में तजर्बा है और इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। दहशत गर्दी हो, पाकिस्तान में अंदर जिंदगी हालात तंग हो, जब जब हमें हुकूमतें मिली हैं हमने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को संभाला है और ये अनोखा लाडला आज पाकिस्तान को न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी महाज पे, इकोनॉमी के महाज पे, फेडरेशन को बहुत सारे चैलेंजेस लाहक कर दिए हैं और 18वीं तरमीम जो कि हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिस पे सारी जमातें, सारे लोग मुत्तफिक हैं, उस तरमीम को भी ये खत्म करने के दरपे हैं। एनएफसी जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला है, जिसने माजी की तलखियों को कम किया है, ये उसको भी खत्म करने के दरपे हैं, जिसकी हम इनको कतई इजाजत नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह कौम देखेगी कि आइंदा चंद दिनों में पीपल्स पार्टी भी अपनी सीसी की मीटिंग करेगी, अपने फैसले करेगी और अपनी पीडीएम की जमातों के साथ मिलके अपने उस सफर को जो कुछ दिनों के लिए तातुल का शिकार हुआ उसको फिर जारी व सारी करेगी, जरूर करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे पहले बात इसलिए कर ली
کہ थोड़ी देर में हमारे जब साथी आ जाएंगे तो फिर हम अपनी बातें करेंगे। प्रेस वाले दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए हैं। अब आपके अगर कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। कारा साहब, बिलावल साहब ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि एटम बम जो है वो मुनासिब वक्त पर गिराया जाएगा इस्तीफों का, तो क्या आप समझते हैं कि ईद के फौरी बाद जो है ये एटम बम गिराया जा सकता है? देखिए, हमारे कुछ दोस्तों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो छोटा सा यही है, वो वक्त का है। हम इस्तीफे देने के खिलाफ नहीं है। हमारा इशू ये है कि जो हमने चार्टर लिखा हुआ है उस चार्टर के अंदर बहुत सारे इकदामात उठाने थे, कुछ उठा चुके, जलसे थे, जुलूस थे, रैलीज थी, बाई इलेक्शंस थे, सब कुछ कर चुके। उसमें एक अमल बाकी है और वो है कि हम लिखा हुआ है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हमारी गुजारिश अपने साथियों से यह है कि हम अदम एतमाद लाएं। पंजाब में 6-7 वोटों का फर्क है, हम बड़ी आसानी से उस फर्क को मिटा सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के अपने 25-30 MPs वो दुहाई दे दे कि इनके खिलाफ है। इस दफा जब सेनेट के अंदर वोट लेने का वक्त आया तो कभी गवर्नर गए, कभी वजीर आला गए, कभी डीसी गए, कभी कमिश्नर गए, कभी डीआईजी गए, और कभी धमकाया, कभी लालच दिया, कभी पैसे दिए, कभी डेवलपमेंट दी, तब जाके उनको आर्जी तौर पे उनसे वोट ले सके हैं। तो अगर हम अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक हों, मुत्तहद हों इस इशू पे, तो हम आसानी से ये मरहला तय कर सकते हैं। और उसके लिए अगर ये मरहला आता है तो यकीनन मुस्लिम लीग का ये हक है कि वो हमजा शहबाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आगे आए। इसी तरह कौमी असम्बली है, वहाँ स्पीकर साहब के खिलाफ उनका जो रवैया है वो बिल्कुल पार्टीजन है। वो बाकी जमातों को, अपोजिशन को उनका ड्यू टाइम नहीं देते, उनका ड्यू तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है। हमारा उनसे सिर्फ यही इख्तिलाफ, वो कहते हैं कि अदम एतमाद को छोड़ें, डायरेक्टली उस अमल पे आ जाए। हमारा ख्याल है कि हम पहले वो पूरा करें, क्योंकि कुछ दोस्तों का ख्याल था कि सेनेट में जिसमें ये हुकूमत बुरी तरह एक्सपोज हुई, उस इलेक्शन के अंदर हमारे पास वोट पूरे नहीं थे। मेरी आपसे गुजारिश होगी, थोड़ी देर के लिए प्रेस के दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो मैं अपनी गुजारिशात जल्दी खत्म कर लूंगा। हमारी गुजारिश उनसे यह है कि हमें वो मरहला तय करना चाहिए और आवाम को साथ जोड़ना चाहिए, और उनका ख्याल है कि नहीं, डायरेक्ट उस मरहले पे आ जाना चाहिए। हम उसके नफे नुकसान को सोच के बातें कर रहे हैं। उनके और हमारे दरमियान कोई डिफरेंस बड़ा नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि इस्तीफे दे दिए तो फिर कैसे, ये हुकूमत कैसे गिरेगी, उसके बाद क्या होगा, बाई इलेक्शन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जवाब में हमें अपनी ज़हनी तौर पे कम से कम जवाब मिल जाने चाहिए। अमलन तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये हमारा उसके ऊपर अपना एजेंडा भी मौजूद है, कोई इस पे तातुल नहीं है। कारा साहब, पीपल्स पार्टी मुल्क की अवामी जमात और बहुत सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार है, तो पीपल्स पार्टी ने PDM बनाते वक्त बहुत कुर्बानी दी है। लीडर भी जो है वो एक छोटी जमात का जो चुन लिया गया, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कुर्बानियाँ दी गई PDM तहरीक के दौरान। तो फासिल जरदारी साहब ने जब मशरूत किया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने पर इस्तीफे दिए जाएँ, तो उस हवाले से मरीम नवाज साहबा ने जो है बड़े मुतज़ाद बयान दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कमर में खंजर घोंपने वाले बेनकाब हो गए। तो क्या ये उनकी सियासी नापुख्तगी का सबूत नहीं है? देखिए, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना ही ऐसी बात है। जब ये हम बिरादरियों में जब कोई आपस में इख्तलाफ हो जाता है ना, एक ही कबीले के लोग होते हैं, तो वो आपस में फिर सुलह शुलह हो जाती है, तो उसके बाद भी छोटी छोटी रंजिशें किसी न किसी वक्त उठती रहती हैं, सर उठाती रहती हैं। तो फिर समझदार लोगों का काम यही होता है कि उन रंजिशों को वक्त के ऊपर क्लिप करते रहें, उन प्लग होल्स को प्लग करते रहें। ये एक तलखी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ये दोनों तरफ से हुई। पीपल्स पार्टी ने किसी मौके पे इसको इनिशिएट नहीं किया। मेरी गुजारिश है जी, आप जरा खामोश रहिए। मैंने प्रेस वालों से भी गुजारिश की है, आप जरा खामोश रहिए जी, और अगर बातें करनी है तो पीछे जाके बैठ जाए प्लीज, वहां बातें कर लें आराम से। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की। हमारी आज भी कोशिश है, और हम किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। जो हुआ वो नामुनासिब हुआ, नहीं होना चाहिए था। और आइंदा हमारे पास
اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس حکومت کے ہاتھوں آج جس تلخی کا، جس مصیبت کا سامنا ہے، اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کے نہ صرف اس سے چھٹکارے کے لیے بلکہ جس حکمرانی کا خواب ہم مستقبل کے لیے دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے تسلسل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں گے۔ اچھا قائرہ صاحب، گیلانی صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے، انہیں اعتماد میں نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ رستے میں تھا سفر میں، تو مجھے نہیں پتا کس وقت رستے کہ وہ کیا فیصلہ ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر میرا کمنٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے دوستوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ گیلانی صاحب کا الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے، ڈاکہ مارا گیا ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، آپ گیلانی صاحب کو چیئرمین بنا دیں لیڈر آف دا اپوزیشن۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بڑی ماحول کریٹ کیا ہے، انفارچونیٹلی وہ کمیونیکیشن اس طرح نہیں ہو سکا اور اس میں کچھ تھوڑا ابہام آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو سکے، لیکن کیونکہ میں مکمل اپڈیٹڈ نہیں ہوں اس لیے اس پہ ٹامک ٹوئیاں مارنا کو مناسب نہیں ہے۔ پھر سے دراڑیں پڑ گئی ہیں، کیا اپوزیشن جماعتیں چلا رہے ہیں کہ آج ثابت ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بھی جماعت ہے اور انہوں نے نون لیگ کو دھوکہ دے کے گیلانی صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے؟ ہم نے کسی کو دھوکہ نہ ماضی میں دیا ہے نہ آج دے رہے ہیں۔ ہم نے صرف اتنی گزارش کی ہے، ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی کھیل نہیں کھیلے۔ بھٹو شہید ایک وقت میں جب وہ وزیر تھے تو مارشل لا لگا ایوب خان کا، وہ ایوب خان کے وزیر نہیں تھے، وہ سکندر مرزا کی کیبنٹ میں وزیر تھے اور وہ کنٹینیو ہوئے، لیکن پھر ایوب خان کو اس کے پورے تمطراق اور عروج پہ انہوں نے چھوڑا اور اس کو چیلنج کر کے اس کو گھر چھوڑ کے آئے اور انہوں نے اس نئے نظام کی ایک بنیاد ڈالی، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی جو سب کو پتا ہے۔ بی بی شہید نے اور محترمہ نصرت بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور اس ملک کی بہت ساری ان جماعتوں کو جو بھٹو شہید کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی تھی جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، ان کو بھی ساتھ لے کے جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کی۔ ہماری کھلی تاریخ ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے سہارے نہیں کھیلے۔ بہت سارے لوگ مختلف اوقات میں، اب بہت سارے دوستوں کو سبق آ گیا، ہمیں ذرا پرانا آ گیا تھا، ان کو ذرا نیا آیا ہے اور ان کو بھی سبق آ گیا، سبق وقت سکھاتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے نہیں آئے، ہم جب بھی آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ساری کوششوں کے باوجود آئے ہیں۔ ابھی بھی الیکشن ہم سے چھینا جاتا ہے، گیلانی صاحب کی چیئرمینی چھین لی جاتی ہے، الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کر لیے۔ آرمی چیف سے ملاقاتیں کوئی اور لوگ کرتے ہیں، کوئی اور جماعتیں کرتی ہیں اور الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا۔ پنجاب میں سینٹ الیکشن ہوتا ہے، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی آپس میں سمجھوتا کر کے سیٹیں بانٹ لیتی ہیں، الیکشن نہیں کراتی۔ ڈیل ہماری ہو گئی، اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ قائرہ صاحب، سینیریو میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ آپ کو آگے چل کے جوائن کرتی ہے، آپ اس کو ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کے لیے؟ جی سوری، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈیا میں آگے جا کے نون لیگ آپ کو جوائن کرتی ہے، آپ ان کے فیوچر میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ٹرسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ان پہ یا وہ مجھ پہ یا باقی جماعتیں ایک دوسرے پہ کو بلائنڈ ٹرسٹ کریں گی۔ اگر ٹرسٹ ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارا ماضی بہت تلخ تھا، ہم نے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیا، لیکن اس کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ جماعتیں آپس میں کچھ معاہدے کرتی ہیں، لکھ کے رکھ لیتی ہیں کہ ہم نے یہ سٹیپس اٹھانے ہیں، یہ اقدامات لینے ہیں۔ ہم ان جو تحریریں ہم نے لکھی تھی، ہم ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس سے مفر نہیں کر رہے۔ ہمارے کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں، ہمارا خیال ہے کہ نہیں، وہ ضروری سٹیپس ہیں وہ اٹھائے جائیں، یہ ڈفرینس ہے۔ باقی ایبسولوٹ ٹرسٹ والی بات جو ہے، ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں۔ قائرہ صاحب، آپ کی
आप लोग कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लाहेवली इख्तियार किया जा रहा है? और आज की मुलाकात में भी कायल करने की कोशिश सर ये स्टेट बैंक जो है उसको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, बहुत अच्छा जी जी सॉरी मारा जा रहा है। तो मरियम सभा से आपने नाश्ता भी किया है और आप जो कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लाहेवली इख्तियार किया जा रहा है? और आज की मुलाकात में भी आपने आज की मुलाकात में उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, हम सब लोग गए, बाकी जमातें भी आईं और वहाँ गपशप हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ इंटरेक्ट करेगी जब हमारी सीसी की मीटिंग होगी, तो हम वहाँ अपनी उनकी जो सिफारिशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सीसी में रखेंगे और उसके बाद हम उनकी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपना नुक्ता नज़र देंगे। नहीं, आज की मीटिंग में तो नाश्ता था ना, तहफ़्फ़ुज़ात तो सारे आपके सामने ही हैं, आपको कौन सा पता नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सवाल है जी जी सदर साहब ने कहा कि जी दामाद यूनियन बन गई है, तो क्या इन फ्यूचर इमरान खान को उसे यूनियन में लेने का इरादा है? मैं नहीं समझा, मुझे मैं सदर साहब ने कहा था जी कि दामाद यूनियन बनी है जिसके जरदारी साहब ताहियात चेयरमैन है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो अभी बाकी ओहदे खाली हैं, तो क्या मुस्तकबल में इमरान खान की कुछ लाइटर साइड की बातें होती हैं, उसको संजीदा नहीं लेते। कुछ तफानन तबाह के लिए बातें की जाती हैं ना। बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये गुजारिश है कि इस हुकूमत ने और बहुत सारे इकदाम किए हैं, आज उसके शाखसाने सामने आ गए। मुझे एक चिट मिली है कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान के बहुत सारे नामवर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी देने से वो फिर IMF वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा बन के रह जाएगा, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम में आलमी इदारे बेरहम होते हैं। उनको इस बात से गर्ज नहीं होती कि लोगों के घरों के चूल्हे चलते हैं कि नहीं, उनको नहीं गर्ज होती कि आम आदमी को रोज़गार मिलता है कि नहीं, रोटी मिलती है कि नहीं। वो कहते हैं आज से उसका ज़िंदगी तंग करो और ट्रिकल डाउन इफेक्ट 5 साल के बाद होगा, जो इमरान खान साहब कहते हैं ना। हमें भी ये हफीज़ शेख साहब बातें सुनाया करते थे, लेकिन हम उनको कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि जिस घर में बच्चों को आज रोटी नहीं मिल रही, तुम उसको 5 साल बाद रोटी मिलने के दावे कर रहे हो। आज मुझे बीमारी का सामना है, तुम 5 साल बाद बीमारी का इलाज बताने जा रहे हो। ये निज़ाम नहीं चलता। लिहाजा ना स्टेट बैंक को मादर पिदर आज़ादी दी जा सकती है और ना नेपरा जैसे इदारों को, बल्कि हुकूमतें इन इदारों, आलमी इदारों और इन इदारों के दरमियान कुशन का रोल अदा करती हैं कि उनकी डिमांड्स अपनी जगह हमसे भी वर्ल्ड बैंक और IMF वाले मुतालबे करते थे, हमें भी ये हुकूमतें या ये इदारे हुक्म देते थे, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को सामने रखते हुए, उनकी कैपेसिटीज़ को सामने रखते हुए फैसले करते थे। ये हुकूमत उनकी बातों पे मनोआन अमल कर रही है। और हम जो कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के और IMF के नुमाइंदे स्टेट बैंक के गवर्नर और वजीर ख़जाना बन गए, अब अल्लाह खैर करे, तो आज कौम देख रही है। आने वाले दिनों में आपको और शाखसाने मिलेंगे। अभी सब्सिडियाँ विड्रा हुई हैं, अभी बिजली के रेट बढ़ने जा रहे हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।